एंड फोर्स कैन नॉट एक्ट सिंगल, फोर्स कभी एक्ट नहीं करता. दैट फोर्स कैन नेवर अकर सिंगल, इट ऑलवेज अकर इन पेयर. लिखो इसको भी थोड़ा सा लिख लो. फोर्स कैन नेवर अकर सिंगल इन नेचर, it always acts in pair. Kalishka Tagore, Ishita, Yes, sir. open your video. Yes, sir. Open your video. सर वीडियो ऑन है. ब्लैक बैकग्राउंड कैसे आता है मैं भी लगाना चाहता हूँ. मैं भी अपना ब्लैक बैकग्राउंड कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ाई होती है. आसिफ अहमद, आज तुम बहुत दिन बाद क्लास में आ गए हो. मैंने अभी जस्ट एंटर किया सर. मेरी वीडियो सच में ऑन है. फर्स्ट दिख रहा है अपना, फर्स्ट दिख रहा है नीचे, बहुत अच्छा. फर्स्ट दिख रहा है आपका तिवारी. For every action, according to third law of motion, for every action there is equal and opposite reaction. बॉडी ए या बॉडी बी, फर्स्ट बॉडी अगर ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बी बॉडी ए पर लगाएगी, और एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस के एफ बी ए. डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दैट्स व्हाई फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. Now the next topic is Shivansh Gupta. Shivansh, open your video. Conservation of momentum. क्या प्रॉब्लम है शिवांश, क्या प्रॉब्लम है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Anybody knows the conservation? Have you here the any law of conservation? Pooja Sharma. The conservation of mass. Ashraj, बोलो बेटा. Sir, there is a law in chemistry. Sir, there is a law in chemistry. Conservation of mass. Conservation of mass. Okay. What was that law? So in that law, the mass of reactants is equal to the mass of product. Okay. Good. Have you heard the conservation of energy? Sir, energy can neither be created nor be destroyed. Right. It means the total energy of the system remain conserved. Rajni Bharadwaj ma'am. Rajni ma'am. Make me the host again करना. Okay sir. मुझे होस्ट बना दी, मैं चला लूँगा क्लास, कोई दिक्कत. Okay. Similarly, the conservation of momentum means the total
momentum of the system remain conserved. According to this law, total momentum of the system remain conserved. देखो एक एग्जांपल बताऊं. कंसीडर टू बॉडीज A and B. Force exerted by the body A on B is F1 and force exerted by B on A is F2. Repeat कर रहा हूँ. Consider two bodies A and B. Force exerted by body A on B is F1 and force exerted by body B on A is F2. F1 is equal to minus F2, right? F1 plus F2 is equal to 0. Kartikeya Paliwal, what is the second law? Kartikeya Paliwal, what is the second law? Yes, sir. What is the second law? Newton's second law. The momentum of a body directly proportional to the force applied on the body. This is not the second law. Second law. Manya, कुछ से second law. Manya. So the rate of change in linear momentum is directly proportional to time. कहाँ किसने पढ़ा दी ये फिजिक्स भैया? मैं तो नहीं पढ़ाता हूँ ऐसी फिजिक्स. कुछ सारस्वत. Yes, sir. आशीष, second law. Sir, second law है rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. Right. That is the law Manya with Kartikeya Paliwal. Force is directly proportional to rate of change in momentum. Have you forget it? dP over dt of force 1 plus dP2 over dt of force 2 equal to 0. बेटा आप लोग डिफरेंशियल नहीं जानते, मैं आपको बताऊं. स्पेशल बात बताता हूँ. फिजिक्स में एक मैथ्स में डिफरेंशियल होता है जो आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ्स में. कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, उसका अगर कभी डिफरेंशियल निकालते हैं इसको डिफरेंशियल बोलते हैं. बोलते हैं रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है. इसका मतलब इस मोमेंटम का डिफरेंशियल 0 है तो P1 और P2 क्या है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है. यहाँ से अगर डिफरेंशियल हटा दिया तो कांस्टेंट वापस आ गया. सो द मोमेंटम रिमेन कंजर्व. कंजर्व मीन्स द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट. सर बोर्ड नहीं दिख रहा नीचे. कौन सा वाला बोर्ड? यस सर दिख रहा है. दिख रहा है. ओके. राज यादव, now the next topic is connected motion.
connected motion. थोड़ा ध्यान से समझना कनेक्टेड मोशन का जो पर्पस है. वी आर स्टडिंग इन दिस चैप्टर एक्चुअली द पोर्शन ऑफ फिजिक्स वी आर स्टडिंग दैट इज काइनेमेटिक्स. In kinematics, the object is in motion. We study, and it is a branch of mechanics. And you are studying mechanics, mechanical या mechanics. In mechanics, the force, the vectors, the directions, the projectile motion, velocity, acceleration, all are in mechanics. It is also the part of mechanics, machinery part. Have you anybody hear the pulley? Yes, sir. कहाँ पर देखा था पुली आपने? सर वेल पे होता है. पुली होता है घर में? घर में नहीं सर, देखा है. देखा है? वेल से जब पानी निकालते हैं तो इसी से निकालते हैं. यस सर. या साइकिल की जो चैन होती है वो जस्ट भेज जिसके ऊपर वो चैन रोल करती है, दैट इज नोन एज पुली. राइट? पुली मीन्स विच पुल समथिंग, जो किसी चीज को पुल करे, दैट इज कॉल्ड पुली. राइट? एंड वी अटैच ए इनएक्सटेंसिबल, जिसमें एक्सटेंशन नहीं हो, ऑफ रोप. ये रोप एक ऐसी रोप है जिसमें एक्सटेंशन नहीं होगा, मतलब खिंचाव नहीं आएगा. राइट? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ये, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. राइट? तो वेट लटका दिए इस पे, एक ये और एक ये. नेचुरल सी बात है, किसका मास ज्यादा होगा? निखिल राठौर, किसका मास ज्यादा होगा? M2 का. राइट. M2 का मास M1 से ज्यादा होगा. इसका मोशन किधर होगा मेरे भाई? इधर ऊपर जाए तो इधर कहाँ आ रही होगी? नीचे आ रही होगी ना? अच्छा, वेट ऑफ द बॉडी किधर एक्ट होता है? ऑलवेज डाउनवर्ड. And what is the weight of the body always? Have you know? Anybody knows the formula of weight? कल डिस्कस किया था मैंने वेट के बारे में. m into g. m into g. एक्चुअली वेट जो होता है वो हमेशा ग्रेविटी की वजह से होता है. वहाँ एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता. वैसे तो फॉर्मूला फोर्स का m into a होता है, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी, when the force acts due to gravity, that force is known as weight. So it will always act in downward direction because Earth attract each and every object towards. इधर mg1 m1g काम कर रहा होगा, इधर m2g. अब जो एक्सेलरेट हो रही होगी ये इस साइड में हो रही है, लेकिन आपको मालूम है कि कभी जो है किसी चीज को हैंग करते हैं तो स्ट्रिंग पे फोर्स लगता है. दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन. नोन एज टेंशन. टेंशन इन द स्ट्रिंग, तनाव कहते हैं उसे, तनाव. और वो हमेशा ऊपर की साइड में रखता है, अपोजिट डायरेक्शन में रखता है वेट के. डायग्राम बनाओ, फिर बात करता हूँ आपसे. शिवांश गुप्ता, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आई कैन रिमूव यू इफ यू नॉट ओपन योर वीडियो. अभी मैंने दूसरी बार आपको इंटर किया क्लास में. देखो, consider two bodies having the masses m1 and m2, having the masses m1 and m2, tied at the two ends
of inextensible string IN EXTENSIBLE string which is run over the frictionless pulley. So inextensible. Which is run over frictionless pulley. बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत आराम से। आप देखो ये ऊपर क्यों जा रही है? The cause is that the tension is more than the weight. This tension is more than the weight. ये तो ऊपर ले जा रहा है टेंशन। अगर टेंशन कम होता और वेट ज्यादा होता तो नीचे को आती। How much this tension more than this weight? That is equal to this force acting in upward direction, and that is M1A. Equation 1. Here it is moving downward. It means this weight M2G is greater than T1. टेंशन से ज्यादा होगा तभी तो नीचे आएगा। कितना ज्यादा होगा? M2A के इक्वल। बेटा आप में से कभी नीट का या कोई मेडिकल का या फिर जेईई मेंस का एग्जाम देगा तो उसको 1-2 क्वेश्चन पुली के थ्रू मिलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे उसको। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस। ओके, नाउ अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ, प्लस करता हूँ तो T to T कैंसिल। M2G minus M1G is equal to M1A plus M2A. M2 minus M1G common. M1 plus M2A common. Now the acceleration is M2 minus M1 G over M1 plus M2. सर थोड़ा ऊपर कैमरा। क्या? थैंक यू सर। सुना नहीं क्या बोला? सर वो बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। अब आ रहा है, अपने आप हो गया। क्लियर बेटा? Putting this value of A in any one of the equation, you can find out the tension. Putting the value of A in equation 1, then T minus M1G, M1 A की वैल्यू आपका M2 minus M1 over M1 plus M2 G। T is equal to M1G को चल ले लेता हूँ मैं, M1 M2 minus M1 M1 plus M2 minus M1 G कॉमन ले लिया, एक साइड ले आया हूँ मैं चाहूँ तो M1 भी कॉमन ले सकता हूँ। M2 minus M1 M1 plus M2 minus M1। एलसीएम आपने लिया M1 M2 minus M1
माइनस m1 माइनस f2 ओ ये प्लस का है ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 to m1 कैंसिल, m2 m2 2 m2 2 m1 m2 ओवर m1 plus m2g. It is the tension on that distance. Okay. Now the next topic is apparent weight of the man in a lift or elevator. Yashaswi, what is the meaning of apparent? सर लेफ्ट के बाद क्या है? Elevator, E-L-E-V-A-T-O-R, elevator. Yashaswi, what is the meaning of apparent? Anybody else in the class? Anybody else in the class? Sir, apparent is not actual. So जो लगता हो. Feel होता है. Yes, sir. Something which you can feel, actually feel, that is apparent. जब कोई आदमी लिफ्ट में होता है ना, मूव करता है, ऊपर से नीचे जाते हैं, आप लिफ्ट में ऊपर से नीचे जाते होंगे, नीचे से ऊपर जाते होंगे, या एलिवेटर भी लिफ्ट जैसे ही होता है। एलिवेटर में ये सब जो कि वो भी मटेरियल ले जाने के लिए ऊपर मशीन यूज करते हैं, एलिवेटर होता है वो। उसमें जो एपरेट वेट होता है किसी भी मैन का, वो क्या होता है इसकी बात करता हूँ। पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना बेटा। जैसे ये कोई लिफ्ट है, इसमें मैंने एक वेइंग मशीन रखी हुई है। वेइंग मशीन समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये पता करने के लिए वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, राइट। होता क्या बेटा, जो भी आदमी इस पे वेइंग मशीन पे हमने आदमी को किसी को खड़ा कर दिया, इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ काम कर रही होगी, ऊपर की साइड पे। कॉन्सेप्ट समझना। मैंने क्या कहा था, फोर्स कभी भी सिंगल पेयर में नहीं लगता, इट इज ऑलवेज कनेक्ट। फोर्स इज ऑलवेज एक्ट इन पेयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप अगर बैठे हैं ना, तो आपका वेट नीचे काम कर रहा है और जिसके ऊपर आप बैठे हैं उसकी रिएक्शन ऊपर काम कर रही है, वरना आप हवा में बैठ के दिखा दो मुझे। तो दिया गोयल, दिया
दिया गोयल। अंशिता त्यागी। Yes, sir. Anybody can sit in here? Yes, sir. Anybody else? कोई कॉन्सेप्ट बताएगा कि ये बोल रहे हैं एयर में बैठ सकते हैं, क्या बैठ सकते हैं एयर में? हवा में ऊपर क्यों? नहीं सर, ग्रेविटी रिएक्ट करती है। ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्शन होता है। और फिर आप टेबल पे क्यों बैठे हो और चेयर पे क्यों बैठे हो? द कॉज इज दैट। बोलो बोलो बेटा। एक तेज से ग्रेविटी रिएक्ट कर ही रही है। रिएक्ट कर रही है, लेकिन जिस टेबल पे आप बैठे हो उसकी रिएक्शन भी तो लग रही है, इसलिए तो आप बैठे हो उस पे। Yes, sir. एयर में इसलिए नहीं बैठ पा रहे तो आपका ये सब अट्रैक्ट कर रही है ना? और एवरी एक्शन इक्वल अपोजिशन में बोला था, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स। वेट अगर नीचे काम करेगा तो रिएक्शन ऊपर काम करेगी। अगर आप ये लिफ्ट मूव करना शुरू कर जाए, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। नाउ द लिफ्ट इज मूविंग एक्सेलरेशन ए, राइट? ऊपर जाएगी तो इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा लग रहा है, वेट कम लग रहा है ना? मतलब वेट होगा, वेट ज्यादा होगा तो नीचे रह जाएगी। ऊपर जो रिएक्शन काम कर रही है, ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है, वो रिएक्शन ज्यादा इस वेट से ज्यादा होगी तभी तो मूव करेगा। ये कॉन्सेप्ट बैठा लो पहले दिमाग में। यस सर। नॉर्मली आप अगर सिट कर रहे हैं तो आपका वेट यहाँ काम कर रहा है, रिएक्शन ऊपर काम कर रही है, आप बैठो कोई बात नहीं। अब आपको ऊपर ले जाएगा तो सब फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई भी फोर्स, और जो फोर्स होगा ऊपर लगेगा और रिएक्शन भी ऊपर लग रही है। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो उसके वेट से ज़्यादा है, तभी तो फोर्स ऊपर लग रहा है। इस कंडीशन में आप मूव करोगे, राइट? ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो कि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मोशन कर रहा है, तो कंडीशन ये होती है, मतलब m × a = r - mg। ये दिमाग में बैठा लो। ये साइड पे लिख लो, अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। और अभी इसको कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने। आप लिखो थोड़ा सा इसमें। कंसीडर अ मैन ऑफ मास m is standing on the weighing machine। weighing machine बेटा इसलिए लगाई है ये बताने के लिए कि उसको वेट लाइट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। स्टैंडिंग ऑन द weighing machine, consider a man of mass m is standing on the weighing machine in the elevator। The actual weight of the man is mg and normal reaction of the machine is r। ये r। अब कंडीशन वन है, when elevator इज एट रेस्ट। ये जा ही नहीं रहा है, लिफ्ट खड़ी हुई है आपकी ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे, कहीं भी खड़ी है ना, ऊपर जा रही है ना नीचे। जब वो मोशन में नहीं है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही है, तो ए कितना हो गया? 0। और ए अगर 0 हो जाएगा तो r mg के इक्वल आ गया। तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। टोटल नॉर्मल रिएक्शन is equal to आपने एलिवेटर के बाद क्या लिखा है? is at rest। कंडीशन ये आ गई, फॉर्मूला में ये यूज करूंगा, यही फॉर्मूला यूज करता रहूंगा, राइट? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। द एपरेंट वेट इज इक्वल टू द
apparent weight is equal to the actual weight. अभी इस पे कई पार्ट हैं, मैं कल डिस्कस करता हूँ आपसे. ओके